Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to solve another question of impairment of assets. Question is in front of you. You may read it. On 1st January year 1, entity Q purchased for 2,40,000 rupees a machine with an estimated useful life of 20 years and an estimated zero residual value. Depreciation is on a straight line basis. The asset had revalued on 1st January year 3 to 2,50,000 rupees, but with no change in useful life at that date. Okay. On 1st January year 4, an impairment review showed the machine's recoverable amount to be 1 lakh and its remaining useful life to be 10 years. Right, so this is the whole scenario given to us, and what we are supposed to calculate is there are 4 requirements. And the first requirement is the carrying amount of the machine on 31st December year 2 and hence the revaluation surplus arising on 1st January year 3. So let's start with the first requirement. The requirement is the carrying amount of the machine on 31st December at the end of year 2, okay, and hence the revaluation, okay. So the total value is 240, residual value 0, useful life 20 years, or that's it. So what we are supposed to do is 2,40,000 is the value, 20 years is the useful life, so simply we'll calculate the depreciation. Since the residual value is 0, so we are not supposed to subtract anything from it, so 12,000 is the useful life, and we are supposed to calculate it at the end of, this is our first requirement, at the end of second year. So if the total value is 240 and each year depreciation is 12, so the depreciation for 2 years will be 24,000. We are just supposed to less the total depreciation of 2 years, accumulated depreciation, and we'll arrive it at the value of machine at the end of second year, right? This is our first requirement. So 2,16,000. This is simple. And what else the part of requirement is, hence the revaluation surplus arising on 1st January year 3. This is also the part of first requirement. So the asset held being revalued on 1st January year 3 2,50,000. अब हमारा ये जो एसेट है 2,16,000 का सेकेंड ईयर के एंड पर, थर्ड ईयर के स्टार्ट पर ये हो गया 2,50,000 का. अभी हमारे पास ये कितने का लिखा हुआ है? 2,16,000 का, और ये हो कितने का गया? 2,50,000 का. इसका मतलब है कि कितना इसमें और ऐड हुआ? दिस माइनस दिस, सो 34,000 इसके अंदर और ऐड हुआ है. रिक्वायरमेंट क्या है? द रीवैल्यूएशन सरप्लस. रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है जी हमारे पास ये, दिस इज आवर रीवैल्यूएशन सरप्लस. ये हो गया, ये हमारी ए रिक्वायरमेंट है जी. ये दोनों, ये सेकेंड ईयर के एंड पर कितना आएगा और सरप्लस कितना ऐड होगा. सेकेंड रिक्वायरमेंट है जी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन ऑन 31st December ईयर 3. ओके, तो साल के एंड पर इसकी जो है वो कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है. हमने बस इस साल की डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करनी है, और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो इस साल की आखिर वाली कैरिंग अमाउंट होगी. सो इट्स लाइक डी रिक्वायरमेंट हमारे पास अभी कैरिंग वैल्यू कितनी है? 2,50,000 साल के शुरू में, और अब चूँकि ये 2,50,000 हो गई है और यूज़फुल लाइफ में कोई चेंज नहीं आया था. जब सरप्लस हुआ 2,50,000 का तो यूज़फुल लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, वो शुरू से 20 ही थी. 2 साल गुजर गए हैं, ठीक है. अब 2 साल गुजर गए हैं, इसका मतलब है बाकी कितने रह गए? 18 साल.
तो यूज़फुल कितने रह गए 18। तो अब हम इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कितनी बनती है। divided by this, so the depreciation is now 13,888। तो सिंपली ये हमारे पास कैरिंग वैल्यू है 2,50,000 और इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है। मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो हमारे पास इस साल के आखिर वाली कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, 2,36,111 ये हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ गई एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, राइट। ये एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर है। ये डेप्रिसिएशन इसकी हेल्पिंग कैलकुलेशन है और ये जो एक्चुअली हमसे पूछा गया था ये वो है 2,36,111। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसके बारे में आप लोग एक बात प्लीज़ याद रखें। अब इस डेप्रिसिएशन के अंदर दो पोर्शंस हैं। इस डेप्रिसिएशन के अंदर दो पोर्शंस हैं। हमने जो शुरू में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी वो ये है 12,000। अब जब सरप्लस ऐड हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और हमारा एसेट 2,16,000 से बढ़कर 250 का हो गया, यहाँ पर 34,000 ऐड होने के बाद, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐड होने के बाद, तो अब हमारी डेप्रिसिएशन इस सरप्लस पर और इसकी इस वैल्यू दोनों पर चार्ज हो रही है। तो जो 12,000 है, 12,000 तो हमारे पास डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर है, और जो इजाफी इसके अंदर इजाफी हो गया ना, एक 1899 1889, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये प्लीज़ याद रखें आप। वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन है और ये हमारे पास है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। दिस इज आवर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास जो आ रही है वो है ये, ठीक है, 13,889। ये बात आपने याद रखनी है कि एक डेप्रिसिएशन 12,000 जो ओरिजिनली थी, दैट इज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ये जो है ये हमारी अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। ये बात क्यों याद रखनी है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट है द इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज्ड इन द ईयर 31 दिसंबर। तो इम्पेयरमेंट लॉस हमें कितना रिकग्नाइज करना चाहिए? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास अब वो कह रहा है कि हम तीसरे साल के एंड तक पहुंच चुके हैं कि तीसरे साल के एंड तक हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी वो 2,36,111 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि चौथे साल के बिल्कुल स्टार्ट में आपने रिव्यू किया और आपको इम्पेयरमेंट चार्ज करना पड़ी, और अब आपकी मशीनरी की रिकवरेबल अमाउंट जो रह गई है दैट इज़ ओनली 1 लाख, दैट इज़ ओनली 1 लाख। इसका सिंपल सा मतलब है, अब वो कह रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ। हम देखते हैं हमारे पास था कितने का, दिस इज रिक्वायरमेंट सी नाउ। हमारे पास एसेट था कितने का, ये था 2,36,111 का, और अब कितने का रह गया, 1 लाख का। इसका मतलब है कि बाकी सारा उड़ गया। सो हमारे पास जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो ये है 1,36,111, ठीक है, 1,36,111 ये हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस है। अब आप आए उस इंक्रीमेंटल पर जो मैंने आपको बताया था। देखें, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था कि हमारे पास अगर तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हो, अगर इम्पेयरमेंट किसी ऐसे एसेट पर हुई है जिसके पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस भी ऐड हो चुका है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं और उसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से है, डी रिक्वायरमेंट नहीं, ये सी रिक्वायरमेंट ही है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है, हमारे पास जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था दैट इज 34,000, ठीक है, 34,000। इस 34,000 के साथ हम एडजस्ट करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को, ठीक है। इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे
1889। तो ये हमारे पास आएगा, डिफरेंस लेंगे तो 32,111। इसको हम लेकर जाएंगे अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है। इसको हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो रूटीन में हम इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं वो बहुत सिंपल है। वो हमारे पास है, हमारे पास एसेट कितने का था, 1,36,111 का हमारे पास ये इम्पेयरमेंट लॉस था टोटल। और इसमें से जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है इसको हम एडजस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये वो एसेट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको प्लीज ध्यान से सुने। ये वो एसेट है जो पहले सरप्लस हुआ, बाद में इम्पेयरमेंट हुई। तो कोई भी ऐसा एसेट जिसमें पहले सरप्लस हुआ हो और बाद में इम्पेयरमेंट हुई हो, तो उस इम्पेयरमेंट को हम एडजस्ट करते हैं सरप्लस के साथ पहले, ठीक है। और बाकी की चीज़ को इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेकर जाते हैं। इसीलिए हम इस सरप्लस को भी यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। और ये जो बाकी हमारे पास है, ये जो बाकी हमारे पास है 1,00,000, ये माइनस क्यों नहीं हो रहा है इसमें से, हम इसमें से निकालेंगे तो ये सिंपल हमारे पास 1,04,000 रहना चाहिए। 1,36,000। लेट मी डू इट अगेन प्लीज। ये हमारे पास है जी 1,36,111, ये वाली अमाउंट जो हमने डेप्रिशिएट की थी, सॉरी ये वाली अमाउंट नहीं है, ये वाली अमाउंट है इम्पेयरमेंट लॉस 1,36,111 जो हमारा लॉस है। और इसमें जो हमारा सरप्लस है 34,000, इसको हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, 1,02,000। इसको हमने लेकर जाना है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। इसको हम एडजस्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, इसको हम एडजस्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट, राइट। दिस इज आवर थर्ड रिक्वायरमेंट। एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज the depreciation charge in the year जो 31 दिसंबर ईयर 4, यानी कि चौथे साल में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। हमारे पास अब चौथे साल के एंड पे रह कितना गया एसेट, हमारे पास 1,00,000 का एसेट रह गया, ठीक है। वो जो 1,00,000 का एसेट ये 236 का था, 136 से कम होकर 1,00,000 का रह गया। अब जो 1,00,000 का एसेट रह गया है उस पर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी। अभी बहुत सिंपल है, हमारे पास 1,00,000 इसकी वैल्यू है। और क्या यूजफुल लाइफ में कोई कमी आई है, हाँ, 1,00,000 वैल्यू और यूजफुल लाइफ 10 साल हो गई है अब। तो यूजफुल लाइफ अगर 10 साल है तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास ये इस तरह से आएगा 10,000। तो वो ये पूछ रहा है कि आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा ईयर 4 का। तो सिंपली डेप्रिसिएशन चार्ज ईयर 4 का हमारे पास होगा 10,000। सो दिस इज द होल क्वेश्चन जी, थैंक यू।